Good afternoon, everyone. I, Dharti Parikh, from School of Business and Law from Navrashna University. I would like to welcome our eminent speaker, Mr. Bhavesh Upadhyay. He is an HR advisor and business expert in more than 10 companies. He has been awarded with top 100 HR minds from Asia Pacific Congress and Times of India. He has also loaded with Best Training Award and Boundaryless Leader by Asia Pacific Congress and Doshin Limited respectively. He is also called as Gujarat Ratna Gaurav Award. Apart from this, he is founder of EI Corporate Services Magnet Media Solutions. He is also founder and MD of Enterprising India. He is associated with Intas Pharmaceutical Limited as an Executive Vice President HR, plus Shelby Hospitals as a Chief Operating Officer. Apart from this, he is also associated with Cadila Pharmaceutical, General Manager HR and Corporate Communication. Sir, we would like to welcome you for in this webinar, and we are enlightened to share your thoughts and your knowledge with us. Thank Uh, First of all, let me thanks Dharti Parikh to talk to me, to invite me for this such a wonderful session. I always feel happy when I talk to the HR fraternity, whether it is the students or faculties or any HR person. So thanks Dharti for making this possible today. I know we have, I think, limited people, and most of people are mainly the students or faculties. But let me take this opportunity to talk about the what is happening in the HR world right now. So uh, most of you must be knowing that Dharti, English and Hindi are suitable, correct? So I am using Hindi and English both. कि अभी पूरे वर्ल्ड में if I have to talk about the America, there are 30 million jobs अभी चली गई है market में से. And if you talk about the UK, 1/3 of those who are below 25, उनकी job अभी चली गई है. And India में you will be surprised to know that 7 crore jobs so far chali, people have left their jobs. So I'm not giving you any scary picture, but at the same time I'm giving you the reality. और ऐसी सिचुएशन में एचआर का रोल कैसे होना चाहिए, ये कोरोना का इफेक्ट लास्ट 3 महीने से हम देख रहे हैं. इट्स गोइंग टू हैपन अनदर 2-3 months और 4 months, वी डोंट नो. अगर आप बिजनेस की बात कर रहे हो तो आई कैन ऑल्सो गिव यू 1 or 2 एग्जाम्पल्स. 27 लाख करोड़ का हमको ऑलरेडी लॉस हो गया है इंडिया में. एंड आपको शायद मालूम होगा कि इंडिया की जो टोटल जीडीपी है उसका 14% वी हैव लॉस्ट सो फार. एंड इंडिया का जो बजट है साल भर का वो 17 लाख के आसपास होता है. तो उसके ऊपर 25 या 27 लाख के आसपास हमको लॉस हो चुका है. सो situation is tough, situation is very scary around the globe, but ऐसी situation में there are hope. For example, if we talk about the job opportunities, so there are a few sectors where they are struggling, like those who are into the retail, those who are into the automobiles, those who are into the supply chain management. उनकी job में बहुत बड़ा impact हुआ है. But at the same time, there are few sectors like pharmaceuticals, food and beverages, a few companies on those who are working into the housekeepings, or those who are working on the online shoppings. They are doing a reasonably good job. So अभी इंडिया की सिचुएशन में ऐसा है कि those who are a large company वो अभी सस्टेन हो चुकी है. they फिर भी I can give you a lot of examples because I am a part of a few large organization and also I am a part of few small and medium sized organizations. Even बड़ी organization में बहुत लोगों का salary cut हुआ है. And there are few organizations, those who are a big organization, their name is also
वेरी बिग इन द मार्केट, बट स्टिल उनके जो वाइस प्रेसिडेंट्स है, जीएम्स है, उनके जो सीनियर मैनेजमेंट है, उनकी 30 to 40% सैलरी उन्होंने कट की है। एंड देयर आर फ्यू ऑर्गेनाइजेशंस जो मीडियम साइज ऑर्गेनाइजेशन में, दे हैव स्टार्टेड रिड्यूसिंग देयर मैन पावर। सो ऐसी सिचुएशन में इफ यू आर एचआर प्रोफेशनल्स और इफ यू आर गोइंग टू बी बिकम एचआर प्रोफेशनल्स, थोड़ा हमको स्ट्रेस आ जाता है अपने आप कि भाई ये क्या हो रहा है और क्या करना चाहिए हमको। एंड अगर आप, इफ आई हैव टू गिव यू द एमएसएमई सिचुएशन, तो एमएसएमई में ऐसा है कि मोस्ट ऑफ द एमएसएमईज, 78% ऑफ एमएसएमईज ने अभी मई महीने का सैलरी नहीं किया है, एंड 24% ऑफ एमएसएमईज ने अप्रैल महीने का सैलरी अभी तक किया नहीं है। So yes, market is a very tough market. Market is completely in a stress. But at the same time, we Indians, we believe in a lot of multitasking. We have ability to bounce back in a short time. That is our strength. और અગર આપ ગુજરાતની વાત કરતે હો તો ગુજરાત તો ગુજરાતીપણાનું એવું કહેવાય છે કે એ લોકો જલ્દી હાર ન માને એવી વ્યક્તિઓ છે. એટલે if I have to look at everything from a industry perspective, as a observer from the industries, मैं आपको एक चीज बोल सकता हूँ कि सिचुएशन टफ है, सिचुएशन स्कैरी है, लेकिन अभी भी होप है। एंड मुझे ऐसा लगता है कि लास्ट 15-20 दिन में सिचुएशन बहुत सारी इंप्रूवमेंट हुई है। जो पहले कंपनी एक शिफ्ट में काम करती थी, उन्होंने अभी धीरे धीरे 2 शिफ्ट में काम करना स्टार्ट किया है। जो कंपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज जो 30%, 20%, 40% प्रोडक्शन पे काम करती थी, अभी उन्होंने 60%, 70% अचीव करना स्टार्ट किया है। दोज हु आर कंपनी, फॉर एग्जांपल ऑटोमोबाइल्स कंपनीज, उन्होंने धीरे धीरे अपना प्रोडक्शन स्टार्ट किया है। फार्मास्यूटिकल्स, उनका जो 60%, 40% जो रेट था, नाउ दे हैव स्टार्टेड अचीविंग द 80%। एफएमजीजी सेक्टर्स, जो लोग 10% पे थे, अभी उन्होंने 40% पे स्टार्ट किया है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स, जो अभी 45% पे थे लास्ट 15 दिन पहले, अभी नाउ दे हैव रीच्ड टू अ 65% स्टेज। तो ओवरऑल देयर इज इंप्रूवमेंट। ओवरऑल देयर इज अ ग्रेट होप कि सिचुएशन अभी धीरे 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 इंप्रूव हो रही है। एंड मुझे पक्का कॉन्फिडेंट है कि 1-2 महीने में या मैक्सिमम 4 महीने में वी वुड बी right back as per the normal situation. Now the question is about the today to topic कि ऐसे सिचुएशन में एचआर का रोल क्या होना चाहिए। आई कैन गिव यू एन एग्जांपल कि पहले तो आज की सिचुएशन में एचआर रोल क्या होना चाहिए और पहले जो सिचुएशन थी उसमें एचआर का रोल क्या होना चाहिए था। तो जो पहले जो सिचुएशन में थी उसमें भी एचआर का रोल बहुत क्लियर नहीं था। 3 months back, I was appointing a vice president HR for one large multinational company. I have been, to be very frank and to be honest, I just wanted to share with you the information कि मैंने 23 लोगों का इंटरेस्ट लिया। And when I ask a simple question कि भी आप जो कंपनी में काम कर रहे हो उनका EBITDA कितना है, मीन्स प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना है, और आपका जो मैन पावर कॉस्ट कितना है, to my surprise, 70% of the senior HR level professionals, they were not knowing the manpower cost, or they were not knowing the turnover of the company. They were not knowing the bottom line or profit of the company. This is a very disturbing and very stressful situation to me especially, because जो HR बिजनेस को नहीं समझता है, वो फिर HR क्या कर सकता है। So my first and very important tips to all people who are with me today, that the role of HR is to understand the business processes. The role of the HR is to understand the complete cycle of the business from a top, and HR has to understand the role of HR from a management perspective. मैं आपको एक और चीज बोलता हूँ कि कभी भी किसी को आप पूछो, इवन आपके स्टूडेंट को पूछो या आपकी फैकल्टीज को पूछो जो जिन्होंने कभी इंडस्ट्री में काम नहीं किया है, इफ यू आस्क देम व्हाट इज द रोल ऑफ एचआर, सो मोस्ट ऑफ द पीपल दे सेज द रोल ऑफ एचआर इज to ensure that human resources professionals they work in the organization with the highest optimum efficiency. और लोग बात करेंगे फिर रिक्रूटमेंट की, ट्रेनिंग की, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम की या रिटेंशन की, लेकिन आर वी क्लियर कि एचआर का रोल क्या होना चाहिए।
एचआर का रोल क्या होना चाहिए? मैं आपको फिर से एक क्वेश्चन पूछता हूँ, आर वी क्लियर की रोल ऑफ एचआर क्या होना चाहिए? अकॉर्डिंग टू मी, रोल ऑफ एचआर इज टू ऐड वैल्यू टू बिजनेस। अगर आप बिजनेस में वैल्यू एडिशन नहीं करोगे, अगर आप जो कंपनी में काम कर रहे हो वो कंपनी का ग्रोथ नहीं हो रहा है, उसका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, तो आप कितना भी अच्छा प्रैक्टिस एचआर करो, कितना भी आप हाई प्रोफेशनल एचआर प्रैक्टिस आप इम्प्लीमेंट करो, लेकिन अगर कंपनी इज नॉट मेकिंग द ग्रोथ, कंपनी इज नॉट मेकिंग इम्पैक्ट ऑन द प्रॉफिट, there is a no meaning of practicing a high quality of HR. So I would request everyone, and I would specially request to HR faculty कि आप स्टूडेंट्स को बताएं कि भाई एचआर का रोल बिजनेस में वैल्यू एडिशन करना है। नाउ क्वेश्चन अराइज कि आप एचआर में रहकर बिजनेस में वैल्यू एडिशन कैसे कर सकते हो? तो अगर आप सोच लो 5 मिनट के लिए कि मैं एचआर प्रोफेशनल नहीं हूं, लेकिन मैं कंपनी का ओनर हूं और मुझे कंपनी को रन करना है और मुझे कंपनी को प्रॉफिटेबल बनाना है, तो इमीडिएटली विल कम टू नो कि भी एचआर का रोल क्या होना चाहिए। अगर मैं ओनर हूं कंपनी का और मैं कंपनी का एमडी हूं और प्रमोटर हूं, और मेरी एक्सपेक्टेशन एचआर के पास क्या होना चाहिए? मेरी एक्सपेक्टेशन बहुत सिंपल होनी चाहिए। अगर मैं एंटरप्रेन्योर हूं, मैं ऐसा चाहूंगा कि मेरी कंपनी में बेस्ट पीपल हो, हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ पीपल हो, जो ओनरशिप ले, जो सेल्फ इनिशिएटिव्स ले, जो अपने टास्क को राइट टाइम पे पूरा करे, जो एम्प्लॉयज को अपॉइंट करे जिसको मोटिवेशन की जरूरत नहीं है, वो अपने आप काम करे। अगर मैं एंटरप्रेन्योर हूंगा तो मेरी एचआर मैनेजर के पास ऐसा एक्सपेक्टेशन होगा। Likewise, you need to think the role of HR from a promoter's perspective or entrepreneur's perspective. अगर आप सोचते हो कि आपका काम सिंपल रिक्रूटमेंट करना है या परफॉर्मेंस मैनेजमेंट करना है या कॉम्पिटेंस इंप्रूवमेंट करना है, तो दैट इज नॉट रियल रोल ऑफ एचआर। द रोल ऑफ एचआर इज टू एंश्योर दैट आप ऐसा कुछ टूल डेवलप करें ऑर्गेनाइजेशन में, आप ऐसा कल्चर ऑर्गेनाइजेशन में डेवलप करिए, आप ऐसा प्रैक्टिसेस ऑर्गेनाइजेशन में डेवलप करिए, तो पूरे ऑर्गेनाइजेशन में एक जबरदस्त कल्चर और एक जबरदस्त सिस्टम आप ऐसा डेवलप करो जैसे ऑर्गेनाइजेशन में परफॉर्मिंग ड्रिवन एक कल्चर खड़ा हो जाए, एंड लोग ऑर्गेनाइजेशन में कंट्रीब्यूट करे, टांजिबल कंट्रीब्यूशन करे, मेजरेबल कंट्रीब्यूशन करे। आपके पास अच्छी एचआर प्रैक्टिसेस होनी चाहिए, जैसे कोई भी टूल ऐसा आप डेवलप कर सकते हो इन द फॉर्म ऑफ रिटेंशन टूल और परफॉर्मेंस मैनेजमेंट टूल और की रिजल्ट एरियाज और केपीआईज। आज के दिन में कोविड की सिचुएशन में मैं बाद में आता हूं, लेकिन most of the HR professionals, they are not understanding the role of HR. They are only thinking about the role of HR is to, they are a representative of the employees and they talk on behalf of employees. लेकिन मेरा एक स्ट्रॉन्ग मानना है कि अगर आपको एचआर करना है तो आप पहले आपको बिजनेस प्रोसेसेस, कंपनी की जितने भी बिजनेस प्रोसेसेस है उसको पहले अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, आपको मार्केट अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, आपको कॉम्पिटिटर्स कौन है उसको देखना पड़ेगा, आपका मार्केट में क्या सिचुएशन है, व्हाट काइंड ऑफ परसेंटेज यू आर गेनिंग इन द मार्केट, कितना आपका ग्रोथ हो रहा है 5 साल में, कॉम्पिटिटर्स क्या कर रहे हैं, आपकी प्रोडक्ट कौन कौन सी है, आपकी कॉम्पिटिटर्स की प्रोडक्ट कौन सी है, आपका स्ट्रेंथ क्या है, आपका एरियाज ऑफ इंप्रूवमेंट क्या है। अगर आप ये सब ध्यान से पहले अंडरस्टैंड करोगे, समझोगे, तो ही आप राइट एचआर प्रैक्टिसेस ऑर्गेनाइजेशन में डेवलप कर सकते हो। मैं रुकता हूं 1 मिनट के लिए to give you a thought कि रोल ऑफ एचआर इज टू ऐड वैल्यू इनटू बिजनेस। एचआर रोल ऐसा होना चाहिए जैसे वो पहले कंपनी के मैनेजमेंट, कंपनी के जो सीईओ है, कंपनी के जो एमडी है, कंपनी के जो प्रमोटर है, उसके एंगल से वो सोचे। अगर मैं मालिक होता तो मेरी एक्सपेक्टेशन एचआर का जो रोल है उसमें से ये मेरी एक्सपेक्टेशन है हो गई। अगर आप ये दिशा में सोचते हो, अगर आप सोचते हो कि आपके काम से कंपनी में कुछ परफॉर्मेंस में वैल्यू एडिशन होता है, देन यू आर रियल एचआर पर्सन। नहीं तो आप आओगे मॉर्निंग में, आप ऑफिस में बैठोगे, आपके पास लोग 10 15 20 25 लोग कंप्लेन लेके आएंगे, आप सुनोगे, आप लीव मैनेजमेंट करोगे, आप सैलरी कैलकुलेशन करेंगे, आप अटेंडेंस करेंगे, आप 1 2 ट्रेडिंग प्रोग्राम कर दोगे, एंड देन यू आर एंडिंग योर डे विदाउट एनी क्लियर प्रोडक्टिविटी। तो मैं नॉर्मल सिचुएशन की बात कर रहा हूँ कि एचआर का रोल है ना ऐसा होना चाहिए कि आपके जितने भी एफर्ट है, आपके जितने भी टूल्स है, वहां से कंपनी को वैल्यू एडिशन इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट में इम्प्रूवमेंट हो, वही ऐसा काम करो, देन यू आर प्लेइंग ए रियल रोल ऑफ एचआर अकॉर्डिंग टू मी।
अभी मैं आज की सिचुएशन पे आता हूँ कि जो कोविड की सिचुएशन है, इसमें एचआर का रोल क्या होना चाहिए। बहुत सारे लोग मैंने इंटरेक्शन किया है और मैंने बहुत एचआर प्रोफेशनल के साथ बात किया है, एंड दे ऑलवेज फील दैट द एचआर इज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन एक चीज मैं आपको बोलता हूँ कि अभी आज का टाइम जो स्कैरी सिचुएशन है, आज के टाइम में तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू ऑल ऑफ अस टू एंश्योर दैट आवर कंपनी सस्टेन फॉर अ लॉन्गर पीरियड। अगर आप आज के दिन में प्रमोटर के साथ, कंपनी के मैनेजमेंट के साथ कंधे से कंधे मिला के काम करोगे या उनको हेल्प करोगे, देन यू आर प्लेइंग ए रियल रोल ऑफ एचआर। आज की आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है कि कंपनी को कोई भी क्राइसिस सिचुएशन है, स्ट्रेस सिचुएशन है, उसमें से जल्दी बाहर लाए। आज तक जो आप एक रिप्रेजेंटेटिव बन के काम कर रहे थे लोगों के और जो एम्प्लॉयज के, आज सिचुएशन ऐसा है, आज समय की डिमांड है कि आप लोगों के तो रिप्रेजेंटेटिव बन के रहोगे, लेकिन यू हैव टू बिकम अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एम्प्लॉयर। आज के समय की डिमांड है कि आपको मैनेजमेंट का रिप्रेजेंटेटिव बनने की जरूरत है। मैनेजमेंट का जो पेन है, मैनेजमेंट का जो कैश फ्लो सिचुएशन है, मैनेजमेंट का जो फाइनेंशियल सिचुएशन है, मैनेजमेंट का जो जो रियल ट्रबल है इन टर्म्स ऑफ कैश फ्लो या रॉ मटेरियल्स परचेस करने के लिए पैसा नहीं है, सैलरी करने के लिए पैसा नहीं है, ऑर्डर नहीं है मार्केट में से, वो समझने की जरूरत है आपको। आप पहले समझोगे तो ही आप एक कम्युनिकेट कर सकेगो, तो भी आप कम्युनिकेट करोगे बाकी के एम्प्लॉयज को। once you understand the situation of entrepreneur, or once you understand the situation of organization processes, then only you will be able to convince your employees that yes, आज तक wherever there is a crisis, wherever there is a slowdown, management has also always helped us। एंड आज तक एक भी टाइम ऐसा नहीं है कि मैनेजमेंट ने कभी हमारा सैलरी एक दिन के लिए भी डिले किया है। तो आज इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल ऑफ अस to ensure that we will give our 150%, not 100%, 150% to the company, to make sure that our organization can sustain for longer period। तो आज की डिमांड ऐसी है, आज की जो कोविड की सिचुएशन है, आपके पास इफ यू आर वर्किंग एज एचआर मैनेजर, आपके पास क्या क्या अभी प्रॉब्लम्स है। मैं बहुत सारे कंपनी के एचआर प्रोफेशनल से बात करता हूँ, तो आज का जो टाइम है ना, दिस इज द ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर एचआर, मैं आपको बोल सकता हूँ, where you can play a very important and a vital role, where you can talk to employees, you can motivate the promoter। आप उनको भरोसा दिला सकते हो कि बॉस, we know, we understand you, हमारी सिचुएशन we know it's not good, but we are there with you, we are there with you। whenever an employee promoter को जब बोलता है कि I am with you, then it gives a tremendous confidence to the promoter। उसको ऐसा लगता है कि मैं अकेला नहीं हूँ फाइट करने के लिए, मेरे साथ मेरी टीम खड़ी है। सो इट इज इम्पोर्टेंट एज ए एचआर मैनेजर टू आप ऐसा कल्चर ऑर्गेनाइजेशन में क्रिएट करो। आप जितने भी अपना एचओडीज है उनका माइंडसेट चेंज करो, जितने भी आपके एम्प्लॉयज है उसका माइंडसेट चेंज करो, उनको एक सबको साथ में लाके यू गिव अ फुल कॉन्फिडेंस टू द एंटरप्रेन्योर कि यस बॉस, वी नो दैट सैलरी में डिले हुआ है, वी नो दैट हमारे सैलरी कट हुए, बट स्टिल वी आर विथ यू, वी आर देयर विथ यू। जब तक आप राइट एनवायरमेंट में, राइट कंडीशन में, नॉर्मल सिचुएशन में आप आ जाए, हम आपके साथ हैं। और एक बार प्रमोटर्स को या एंटरप्रेन्योर्स को या मैनेजमेंट को या मैनेजिंग डायरेक्टर को लगेगा कि यस, माय पीपल हैव गिवन मी अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ, मेरे लोग मेरे साथ रहे ऐसे सिचुएशन में, तो मैं उनकी जो कुछ हार्ड टाइम आएगा, आई वुड बी ऑलवेज विद देम। हमेशा एचआर को हमेशा ऐसा, मैं नॉर्मल कंडीशन बात करता हूँ, लोगों को ऐसा लगता है कि वी आर डूइंग अ ग्रेट जॉब, बट प्रमोटर्स और मैनेजमेंट हमको दे नॉट अंडरस्टैंड अस। मैं बहुत सारे एचआर लोगों मैं आई एम अ नेशनल जॉइंट सेक्रेटरी ऑफ नेशनल एचआरडी। when I meet lot of HR professionals, they always complain about the management, they always complain about the management। but मेरी सिंपल एक रिक्वेस्ट है, जो सिचुएशन आपके कंट्रोल में नहीं है, आप मैनेजमेंट को चेंज करने में आप इतना सफल नहीं होगे, या मैनेजमेंट का जो माइंडसेट है या मैनेजिंग डायरेक्टर का जो माइंडसेट है,
You cannot control their mindset, their behavior. तो आप why you are thinking too much about them? You focus on what is in hand with you. आपके हाथ में है कि आप कैसे सोचते हैं, आपके हाथ में है कि आप कैसे बिहेव करते हैं. तो instead of thinking about the management, instead of thinking about the behavior of the company, you just focus on the ऐसी situation में मैं क्या कर सकता हूँ, how I can be a more positive person, how I can see that ऐसी सिचुएशन में मैं बहुत बड़ा मैं इंप्रूवमेंट ला दूं मेरे में, और मैं एक ऐसा कुछ करूं जैसे कंपनी में या ऑर्गेनाइजेशन में बहुत बड़ा मैं एक नया आयाम खड़ा कर सकूं. तो मेरी सब एचआर प्रोफेशनल से रिक्वेस्ट है कि आप भूल जाओ मैनेजमेंट क्या सोचता है, आप भूल जाओ कि लोगों की क्या एक्सपेक्टेशन है. एटलीस्ट यू फोकस ऑन योरसेल्फ. आपका बिहेवियर, आपकी थिंकिंग, आपका एटीट्यूड, आपका जो सोचना है वो तो आपके हाथ में है. आप तो चेंज कर सकते हो उसको अच्छी तरह से कि भाई मैं एक्स आदमी हूं, मेरा बिहेवियर वाई है, लेकिन मुझे अभी चेंज करना है. मैं आज से पॉजिटिव रहूंगा, मैं पॉजिटिव रहूंगा, मैं पॉजिटिव सुनूंगा और लोगों को मैं पॉजिटिव बनाऊंगा. एंड आई विल एंश्योर एज ए ग्रेट एचआर पर्सन दैट everyone working in the organization, they will help the organization to grow. ऐसा मैं कर सकता हूँ ऐसी सिचुएशन में. अगर मैं कर सकता हूँ then I'm a real HR person. If you are not able to help management or the entrepreneur of the company in this situation by giving you a lot of comfort to the management, आप ये सिचुएशन में अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हो, then let me tell you very clearly that you are not a true HR professionals. HR, I am just thinking the role of HR. We are very fortunate that God has given a role of HR. हमारा काम लोगों को सूथिंग देना है, हमारा काम लोगों को मोटिवेट करना है, हमारा काम लोगों को एक नई दिशा देने का है, नया डायरेक्शन देने का है. तो दिस इज द सिचुएशन. हम लोगों को आज तक मोटिवेट करते हो तो हम मैनेजमेंट को मोटिवेट नहीं कर सकते हो. कभी कभी हम एम्प्लॉयर को मोटिवेट नहीं कर सकते हैं. हमको क्यों हमेशा मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है? क्या हम एवरी टाइम ऐसा क्यों सोचते हैं कि भी मैनेजमेंट हैज टू गिव मोटिवेट अस? इज इट नॉट अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि ऐसी सिचुएशन को हम मैनेजमेंट को मोटिवेट करें, हम मैनेजमेंट को बताएं कि यस बॉस वी आर विथ यू. बहुत सारी इश्यूज आते हैं एचआर को मेरे ख्याल से. फॉर एग्जांपल एब्सेंटिज्म में आज एवरी ऑर्गेनाइजेशन एवरेज एब्सेंटिज्म, मैं अभी आज ही मॉर्निंग में आर्टिकल लिखा, इट विल पब्लिश इन दिव्य भास्कर इन मंडे, नेक्स्ट मंडे, कि आज ही सिचुएशन में 25% ऑफ एब्सेंटिज्म एवरीवेयर इज देयर. तो ऐसी सिचुएशन में जो बाकी के 75% लोग से उनको यूज करके आप 100% प्रोडक्टिविटी कैसे ला सकते हो ऑर्गेनाइजेशन में, या फिर जितने भी एम्प्लॉइज आपके कंपनी में काम कर रहे हैं उनकी बेस्ट ऑफ द हेल्थ, उनका जो हाइजीन है उनको आप कैसे बेस्ट इंप्लीमेंट कर सकते हैं. या ऐसी सिचुएशन में सपोज आप कैंटीन फैसिलिटीज हैंडल कर रहे हो तो कैसे हाइजीनिक फूड आप ऑर्गेनाइजेशन में ला सकते हो, और कैसे आप बेस्ट प्रैक्टिसेस ऑर्गेनाइजेशन में अडॉप्ट कर सकते हो जिससे सोशल डिस्टेंसिंग भी रहे, लोग हाइजीनिक रहे, लोग एक दूसरे से संपर्क में ना आए और एकदम हेल्दी एटमोस्फियर और एक नया एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाए. ऐसा आप क्या कर सकते हो कि एज अ रोल ऑफ एचआर ऐसी कोविड की सिचुएशन में भी यू विल एंश्योर दैट people are working in the organization, they should be very healthy, they should maintain the hygiene, they should keep social distancing. और एक चीज मैं आपको बोलता हूँ कि कोई भी सिचुएशन डिसिप्लिन से नहीं आता है. अगर आप एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव लोगे, आपका कॉलेज का भी एग्जांपल देता हूँ, अगर आपको कॉलेज में भी अगर आपको और यूनिवर्सिटी में भी आपको बहुत बड़ा चेंज करना है तो आपको एक चेंज मैनेजमेंट का एक प्रिंसिपल्स है कि आपको सबको इनसाइड से मोटिवेट करना पड़ेगा. आप लोगों को ऐसा खुद लोग आपके पास आके बैठे कि नहीं नहीं बॉस ये तो करना ही है. एक कंपनी है, इसका मैं एग्जांपल देता हूँ, विसनगर में एक कंपनी है समर्स डायमंड, 2000 एम्प्लॉइज वहाँ काम कर रहे हैं. एंड लेट मी टेल यू, मोस्ट ऑफ द पीपल दे आर अडॉप्टिंग ऑल गवर्नमेंट रूल्स एंड गाइडलाइंस. उनका सबको किसी को कोई बोलने की जरूरत ही नहीं है. ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट किया है एचआर ने वहाँ कि भाई लोग खुद अपने आप को रिस्पेक्ट करते हैं कि सपोज मेरी ड्यूटी है आज, मुझे मास्क पहनना है, मुझे सोशल डिस्टेंसिंग रखना है, मुझे हाइजीनिक कंडीशंस क्रिएट करना है. सो मुझे किसी को बोलने की जरूरत नहीं है, मुझे किसी को मॉनिटर करने की जरूरत नहीं है. इट इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी कि ऐसी कोविड की सिचुएशन में अपने आप को सुरक्षित रखो. अगर बीइंग ए एचआर पर्सन, अगर आप ये ऑर्गेनाइजेशन में ऐसी अवेयरनेस आप ला दो एक बार, then you can consider as a great HR professionals.
अगर मैं आपको एक चीज बोलता हूँ आज कि देर आर कॉमन एचआर प्रोफेशनल एंड देर आर यूनिक एचआर प्रोफेशनल, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन द कॉमन एचआर प्रोफेशनल्स एंड देर आर यूनिक एचआर प्रोफेशनल्स? कॉमन एचआर प्रोफेशनल्स के बारे में मैं आपको 4 चीज बताऊंगा। वो हमेशा कंप्लेन में रहेगा, बॉस मैं तो बहुत करना चाहता हूँ लेकिन मेरा मैनेजमेंट मुझे सपोर्ट नहीं करता है। दूसरा कॉमन एचआर वाला बोलेगा कि बॉस मुझे तो मैनेजमेंट के पास तो बजट ही नहीं है, मैं क्या कर सकता हूँ। कॉमन एचआर प्रोफेशनल बोलेगा कि बॉस मैं तो बहुत कुछ करना चाहता हूँ लेकिन लोग मेरी सुनते नहीं है, लोग में डिसिप्लिन ही नहीं है, हमारी कंपनी में तो लोग ऐसे ही है, लोगों का माइंडसेट ही नहीं है, लोगों का तो नेगेटिव थिंकिंग है। एक और कॉमन एचआर प्रोफेशनल वाला बोलेगा कि बॉस कि लोग अच्छे हैं लेकिन मैनेजमेंट लोगों की सुनता नहीं है। या कोई बोलेगा मैनेजमेंट अच्छा है लेकिन लोग हमारी कंपनी में बहुत बेकार है। ये दिस आर दी कॉमन प्रैक्टिसेस ऑफ एचआर प्रोफेशनल जो 90% लोग एचआर में है और वो सब इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। लेकिन आई कैन गिव यू द यूनिक एचआर प्रोफेशनल, वो लोग क्या करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंटली आप सुन ला। एक, वो लोग बोलते हैं कि ऐसी सिचुएशन में इट इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एंश्योर दैट मेरे जो एम्प्लॉयज है वो हमेशा खुश रहे, हेल्दी रहे, हाइजेनिक रहे, और मैं ऐसा कुछ टूल यूज करूँ जैसे including peon, including housekeeping boy, those who works for the organization, they can give their 100% contribution to the organization. एक, जिसके पास यूनिक एचआर स्किल्स है वो ऐसा सोचेगा कि बॉस दिस इज द सिचुएशन वेयर आई नीड टू सपोर्ट माय मैनेजमेंट। आज तक मुझे मैनेजमेंट ने मोटिवेट किया है, नाउ इट्स माय टर्न टू मोटिवेट द मैनेजमेंट। जो यूनिक एचआर प्रोफेशनल्स है वो ऐसा बोलेगा कि बॉस ये सिचुएशन बहुत टफ है मार्केट में, लेकिन मैं ऐसा मेरी कंपनी में एनवायरनमेंट बनाता हूँ वहां कोई कंपनी किसी को, कोई एम्प्लॉय किसी को क्रिटिसाइज नहीं करेगा, कोई नेगेटिव बात करेगा नहीं, सुनेगा नहीं। और एक नेगेटिव जो फीलिंग्स है वो ऑर्गेनाइजेशन में मैं कैसे उसको डिमोलिश कर दूं। आज से मैं ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा एक कल्चर लाता हूँ, हम लोग पॉजिटिव बात करेंगे, पॉजिटिव बात सुनेंगे और पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे। जो यूनिक एचआर स्किल्स है वो ऐसा करेगा कि भाई ये ऐसी टफ सिचुएशन में ऐसे कैन वी वर्क एज अ टीम, कैन वी कोलैबोरेट विद ईच अदर। हमारे जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है एक डिपार्टमेंट हेड से भी दूसरे डिपार्टमेंट हेड्स, मैं कॉलेज की फैकल्टीज को भी बोलता हूँ, उनको भी बहुत सारे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होते हैं। क्या हम साथ में बैठ के काम कर सकते हैं? क्या हम एक दूसरे को हेल्प कर सकते हैं? कैन वी कोलैबोरेट? should we not can we not do any comparison or not compete each other? Can we do only a collaboration? Can we work on the module where we can help each other to grow? Can we do this? Can we design such a module where we can win together? तो ज्यादा मैं बात नहीं करूंगा, लेकिन इतना मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ कि आज की जो एचआर प्रोफेशनल है उनके ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। This is the time where if you are a creative HR person, if you are a person with a lot of differences, you can create a huge value addition to the organization, whether you are working in the college or whether you are working in the corporate. If you are very clear that you as a HR person, you wanted to create a differentiate in the mindset of the people and in the environment, you can. It's a great opportunity for you to create a huge value addition for yourself and for others. आप एक एचआर प्रोफेशनल बन के आप एक ऑर्गेनाइजेशन में एक नया एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हो, एक नया प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हो, आप एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हो, आप एक सबको यूनाइटेड रख सकते हो, आप एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हो सब लोग साथ में बैठ के विन विन सिचुएशन की बात करें। ऑर्गेनाइजेशन का जितना भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है उससे आप ऐसा कुछ एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हो जो पीपल सोचे भाई अब आज का टाइम ऐसा है, वी शुड नॉट फाइट ईच अदर, वी शुड फाइट फॉर इन द मार्केट। हम ऐसा कुछ साथ में बैठ के करते हैं जैसे मार्केट में हम लीडरशिप पोजीशन में आ जाए। अगर आप यूनिवर्सिटी में भी है, अगर आप कॉलेज के फैकल्टी है, आपको ऐसा सोचना चाहिए कि ऐसा हम क्या करें जिससे हमारा यूनिवर्सिटी, जिससे हमारा कॉलेज सबसे बेस्ट कॉलेज की तरफ मार्केट में एस्टेब्लिश हो जाए। क्या हम करें ऐसे सिचुएशन में? तो देयर इज अ नीड ऑफ थिंकिंग क्रिएटिवली, देयर इज अ नीड ऑफ talking out of box, there is a need of thinking something great where you can add value to the organizations. बस मुझे ये इतना ही बोलना था। मैं आपको समराइज करता हूँ फिर से। एक, you should be not a common HR professional. This is time where you should be uncommon. You should be adding value to the organization. And according to me, the role of HR is to add value to the organization in terms of
टैंजिबल्स और इंटैंजिबल्स। अगर आप रियल एचआर प्रोफेशनल है तो आपको एक चीज मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि आप एक ऐसा हेल्दी, हैप्पी और ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करोगे जिससे पूरी ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी एम्प्लॉयज काम करते हैं वो एक 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 झील, पैशनेट, डेडिकेशन एंड कमिटमेंट से काम करेंगे। थैंक यू वेरी मच। ओवर टू यू धरती एंड दिनेश। Thank you so much, Mr. Bhavesh Upadhyay. Sir, this was really a very informative session with the live example of many companies. So we are really glad to have you with us. And thank you once again. Thank you so much for giving us insightful information on the recent challenges faced by the HR and what HR's role should be in the organization to grow their organization. So if Dinesh sir, if now is there if Yeah. any questions are there or not? Okay, friends, all participants, if you have any questions, either you can raise hand in Zoom. The option is available in, if you click on participants and then on the right hand side, on the three dots, you'll get that option. Or you can put in a chat box and then we'll take up those questions. I would be happy if people can talk and ask Yeah. questions. Yeah. So if anybody wants to speak, they can just let me know either through chat box or through raise hand on a Zoom. I will unmute that microphone and then you can ask the question directly to Mr. Bhavesh. Yeah, participants, anybody wants to ask any questions? May I? Yeah. Sir, as you said in the starting of the session that you mentioned about some percentages of many companies, they are reducing the salary or they are like introducing the layoff system in the organization. So like in this COVID situation, why it is required, like this is the completely natural, right? So this is the natural cause, so nobody can avoid it. So how being the HR, अब ऐसे सिचुएशन में ले ऑफ है, सैलरी कट है, तो ऐसे सिचुएशन को एम्प्लॉइज को कैसे ऑर्गेनाइजेशन में रिटेन कर सकते हैं हम? May I know who is asking this question? So this is Dharti only. Okay, so Dharti, हम ये बात कर रहे हैं. People are not asking the question, correct? No issue. धरती, इसमें ऐसा है कि अगर आपको सिचुएशन ऑर्गेनाइजेशन की रियल देखना है तो आपको सब एंगल से देखना पड़ेगा। एक कि कंपनी को ऐसी सिचुएशन भी परफॉर्म करना है और प्रॉफिट में लाना है। और मैं आपको इंडिया की टिपिकल मीडियम साइज कंपनी का एग्जांपल देता हूं कि हमारी अनफॉर्चुनेटली ऐसा सिचुएशन कि अगर 3 महीने तक कोई भी कंपनी में अगर रेवेन्यू जनरेट नहीं होता है तो वो कंपनी फाइनेंशियल स्ट्रेस में आ जाती है। और ऐसी सिचुएशन में कंपनी के जो एंटरप्रेन्योर है उनको लोगों को भी साथ में रखना है और कंपनी को भी आगे बढ़ाना है। तो ऐसी सिचुएशन में एचआर का रोल क्या होना चाहिए? तो एचआर का रोल में लोगों को जो सैलरी कट हो रहा है या कुछ डिडक्शन हो रहा है तो उसके ऊपर एचआर को एक मीटिंग बुला के कम्युनिकेट करना है ओपनली। किसी का भी सैलरी कट होता है तो पेन तो होता ही है। इफ यू आर फैकल्टी ऑल्सो और इफ यू आर वर्किंग इन अ प्रोफेशन ऑल्सो, अगर आपका 10% भी सैलरी कोई कट करता है तो पेन होता है, बिकॉज वी ऑल हैव अ कमिटमेंट। हमारे जो हाउस होल्ड के जो कमिटमेंट है उसको भी हमको निभाना है। तो किसी की भी सैलरी कट होती है तो ऑब्वियसली हमको पेन होता है, लेकिन एचआर को ऐसी सिचुएशन में अपना खुद का पेन को साइड पे रख के और मैनेजमेंट का क्या व्यू पॉइंट है और एम्प्लॉयज का क्या व्यू पॉइंट है, उसमें से रास्ता निकाल के मैनेजमेंट को भी समझाना है और एम्प्लॉयज को भी समझाना है। मैनेजमेंट को ऐसा समझाना है कि बॉस ये सिचुएशन इज बैड, बट इतनी भी बैड नहीं है कि आप कंपनी में सबका सैलरी काटो। और कंपनी में जितने भी लोग काम कर रहे हैं, दोज हु आर कमिटेड, एटलीस्ट दोज हु हैव स्टार्टेड वर्किंग एंड दोज हु हैव स्टार्टेड वर्किंग
hard in this situation, at least they should get a 100% salary or they should get some incentives. At the same time employees को भी बताना चाहिए, employees को भी भाई ऐसी situation में सैलरी कट हुई है तो ये नेचुरल है, और अगर कंपनी परफॉर्मिंग नहीं करेगी, कंपनी के पास पैसा नहीं हुआ तो आपको कैसे सैलरी हम देंगे. एंड दूसरी बात आपने रिटेंशन का किया है, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में कंपनी को एम्प्लॉयज को रिटेन कैसे कर सकते हैं. तो कोई भी कंपनी, जैसे गवर्नमेंट ने हमारे पास रेड जोन, ग्रीन जोन, येलो जोन ऐसा किया है, ऐसा कंपनी के पास भी ऐसा ग्रीन जोन होना चाहिए. भाई 20% और 30% एम्प्लॉइज दोज हु आर वेरी कमिटेड टू द ऑर्गेनाइजेशन, अगर वो कंपनी में नहीं है तो पूरी कंपनी डूब जाएगी. तो कंपनी के पास ऐसा ऐसा एक लिस्ट होना चाहिए कि भाई इतने लोग तो मुझे चाहिए ही चाहिए किसी भी सिचुएशन में. एंड फॉर देम दे शुड प्लान समथिंग डिफरेंटली. उनको कुछ रिवॉर्ड्स दे, कुछ इंसेंटिव्स दे, कुछ कैश रिवॉर्ड दे, और उनको ऐसा रिटेंशन प्रोग्राम करना चाहिए 2 साल, 3, 4, 4 साल का, so those people can work with this organization for longer period. Right. Yes, Jyoti. Thank you. There are two people who want to ask question. I'll unmute their microphone. Yes, please. Hello. Yes, please. Yeah, good afternoon, sir. Good afternoon. First of all, thank you very much for wonderful session. Myself, Dr. Mitsu Patel. I am visiting faculty at Navrashna University and also at Baroda Institute of Management Study. My question is for you, sir, that how HR become a strategic business partner of a company? Yes. Give some insight. Yeah. So आप ऐसा कीजिए कि strategic partner HR कभी बन सकता है when HR understand the businesses. कि HR को ऐसा टूल डेवलप करना चाहिए मित्सु, जो टूल कंपनी के परफॉर्मेंस में कुछ वैल्यू एडिशन दे दे. देन पीपल और द मैनेजमेंट दे कंसीडर HR इज their real partner. Whenever management sees that, then HR is a capable, or HR can create a value addition to the organization, they automatically consider HR as a strategic partner. When HR talk business, then they will understand that yes, this is a real HR partner, and I wanted to partner HR, those who is contributing my business. Okay, sir. Thank you very much, sir. Yeah. So my question is that, sir, कि I just heard the news from the market or some of people has wrote about the current situation that so many companies are laying off the staff, right? And they are also hiring the new talentees as well. So માર્કેટમાં અત્યારે એવું સાંભળવામાં આવે છે કે એ લોકો જેટલા પણ જૂના જેટલા એમ્પ્લોઈઝ છે એમને કાઢે છે, પણ નવા ટેલેન્ટ્સને કે પછી ઓછા સેલરીમાં એ લોકોને હાયર બી કરે છે. અને આની અંદર ફાર્મા કંપનીઝ આર મોસ્ટ ઓફ ધી કે છે આની અંદર કે એ લોકો એવું કરી રહ્યા છે. દે આર જસ્ટ ટેકિંગ ચાન્સ ઓફ ધી કોરોના or COVID-19 pandemic. So is this true? I mean, you have so much experience, or how many, I mean, more than you are very senior person. So I think તમારી પાસે એક્ઝેક્ટ એ વસ્તુ કે તમે એનાલિસિસ કદાચ કરી હશે, તમે આટલા મોટા આર્ટિકલ્સ લખો છો, તો એના પરથી તમે આ બાબતે શું કહેવા માગશો? ઇઝ ઇટ ટ્રુ? આઈ મીન અમારા આઈટીમાં તો એવું છે કે સર ઘણી વખત સિચ્યુએશન્સ એવી છે કે પ્રોજેક્ટ્સ નથી હોતા કે ક્લાયન્ટ્સ અવેલેબલ નથી જ્યારે ફોરેન બિઝનેસ કરતા હોઈએ ત્યારે. તો એમાં તો મેં ઘણી જગ્યાએ એનાલિસિસ કર્યું છે કે સમ ઓફ લેવલમાં કે ખરેખરમાં કામ નથી. ઓકે, બટ વી આર એટ માય ઓર્ગેનાઇઝેશન વી આર વેરી લકી કે કામને બધું સારું અને સ્મૂથલી ચાલ્યું. બટ વોટ અબાઉટ ધ ફાર્મા સાઇડ ઓર અધર ઇન્ડસ્ટ્રી સાઇડ? વોટ ઇઝ યોર કમેન્ટ્સ ઇન દેટ? Yeah, thank you, Vaibhavi. I think we have also interacted in the Facebook. Yes, sir. Yeah. I'm following since long and હું તમારી બધા જ બ્લોગ્સ વાંચું છું. ઘણી વખત જો સારા હોય તો હું મારી ટીમને શેર પણ કરું છું તમારા બધા જ ગુજરાત સમાચારવાળા બ્લોગ્સ, અને હું રેગ્યુલરલી તમને ફોલો કરું છું બધા જ પોસ્ટ માટે તમારા લિંક્ડઇન પર, ફેસબુક પર બધે. Yeah. Thank you very much, Vaibhavi, and it is a very important questions. And to be very honest with you, Vaibhavi, તમારો ક્વેશ્ચન એકદમ રાઈટ છે અને આ થઈ રહ્યું છે અમુક કંપનીમાં.
હું તમને નામ નહીં દઉં પણ એક મોટી લાર્જ ફાર્મા કંપની યસ એ લોકો મારું પણ એ જ વસ્તુ હા વિચારવાનું છે એ લોકો ઘણા લોકોને જે લોકો 50-55 ની ઉપર છે એ લોકોને સી અલ્ટિમેટલી એ લોકોને રિડ્યુસ મેન પાવર કોસ્ટ કરવો છે. નોર્મલી કેવું હોય કે ફાર્મા સેક્ટરની જો વાત કરું ને તો મેન પાવર કોસ્ટ બિટવીન 8 to 9% છે અને આ લોકો ફ્યુ જે ટિપિકલ એન્ટરપ્રેનર્સ છે એ લોકો ટેકિંગ ધી ઓપોર્ચ્યુનિટી ઓફ ધીસ કરંટ સિચ્યુએશન એ લોકો 9% 10% જે મેન પાવર કોસ્ટ છે એને એ લોકો 6% કે 7% કરવાનું પ્લાન કરી રહ્યા છે. પણ અકોર્ડિંગ ટુ મી ધીસ ઇઝ નોટ અ રાઇટ સિચ્યુએશન. અત્યારે તો યસ રાઇટ વે. અત્યારે તો લોકોએ શું કરવું છે કે હુ આર ગોઈંગ ટુ પરફોર્મ ધી ડ્યુટી ઇન રાઇટ મેનર. તમે જો બહુ ક્લિયર હોય કે મારા કંપનીના કર્મચારીઓ જે સર્ટન પર્સન્ટેજ મને ખ્યાલ જ છે કે આ લોકો મારા રાઇટ પાર્ટનર છે ઓર્ગેનાઇઝેશનમાં. એન્ડ સી વોટ ઇઝ અ બિઝનેસ બિઝનેસ ઇઝ ઇક્વલ ટુ પીપલ મેનેજમેન્ટ. સો જે એન્ટરપ્રેનર્સ એવું વિચારે કે મારા કર્મચારીઓ મારા ગ્રોથના કે મારી પ્રોગ્રેસના પાર્ટનર છે અને જે લોકો કન્ટ્રીબ્યુટ કરે છે તો એ લોકોએ આવો પ્રયત્ન ના કરવો જોઈએ. પણ ટુ બી અનફોર્ચ્યુનેટલી ઓર ટુ બી ઓનેસ્ટ યસ આઈ જસ્ટ કમ અક્રોસ વન ઓર્ગેનાઇઝેશન વિચ ઇઝ અ લાર્જ ઓર્ગેનાઇઝેશન અને એ લોકોએ જે લોકો 55 થી ઉપરના હતા એ લોકોના 36 માણસોના આજ સવારે જ રેઝિગ્નેશન લીધા બાય સ્ટેટિંગ ધેટ યસ કે ભાઈ યુ આર અનફિટ ફોર ધીસ ટુ પરફોર્મ યોર રોલ ઇન ધીસ સિચ્યુએશન. સો જે રીતે રાઇટ એચઆર પ્રોફેશનલ નથી હોતા એ રીતે રાઇટ એચઆર જે રીતે પ્રમોટર બી નથી હોતા. તો આપણે તો ખાલી એટલું જ યાદ રાખવું જોઈએ વૈભવી કે આપણે શું કરી શકીએ આ સિચ્યુએશનમાં, કેવી રીતે આપણે રોલ એક સારો પ્લે કરી શકીએ જેથી કંપનીને બી ફાયદો થાય અને આપણા જે કર્મચારીઓ જે અત્યારે કામ કર્યા છે એ લોકો બી ખુશ રહે. તો દેટ ઇઝ અ રોલ ઓફ એચઆર. પણ જે રીતે તમે કીધું એ પ્રમાણે દરેક કોઈનના સિક્કાની બે બાજુ હોય છે, રાઈટ પોઝિટિવ અને નેગેટિવ બાજુ. તો આવા બી પ્રમોટર છે કે જે લોકો આ સિચ્યુએશનનો લાભ લઈ રહ્યા છે. Yes, sir. This is really sad actually. યા Thank you for your answer. As Miss Vaibhavi, what she said, that's completely I agree with her, and all the inputs from your end for the IT industry, that what things are going on in the current scenario, and being the HR person, what we need to work on, and that the word you mentioned, that the correct HR profession. So being the correct HR professor or the profession or the positive HR profession, what steps we should take to grow up our business. So it's ultimately on the HR's hand. So thank you so much, sir, on behalf of Navrashna University. Thanks again for accepting my request and taken this session. Thank you so much, sir. Yeah, thank you so much.